Hello friends, today we are going to study the poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne. Adrienne is an American poet. She is widely known of her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences. Adrienne हमें उस लाइफ के बारे में बताती हैं कि जो हर मैरिड वुमेन अपने लाइफ में सफ़र करती हैं, the problem she faces and how the married life becomes a burden for them. The theme of the poem is to highlight the struggle and conflicts of a woman face in male chivalric society, male dominating society. Aunt Jennifer is the protagonist of the poem, and she exemplifies women all over the world who are victims of persecution at the hands of the patriarchal system. Let us read out the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's finger, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Let us check the vocabulary. Prance. Prance means walk or run energetically. तेजी के साथ दौड़ना, आगे बढ़ना. Topaz. Topaz is a gem of yellow color. एक स्टोन होता है येलो कलर का, चमकता हुआ. Denizens. Residents, inhabitant, जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. Pace. Move. आगे बढ़ना, कदम. Sleek. Sleek means gentle. Chivalric. Chivalric means polite and kind behavior. Fluttering. Fluttering means shaking. जैसे हिलता है जब आप कांपते हुए हाथ. Fluttering fingers. Ivory. Ivory is color similar to white. सफेद, जैसे हाथी के जो दांत होते हैं. That is called ivory. Wedding band. Wedding ring, शादी की अंगूठी. Sits heavily. Here it is a symbolism. It is great burden. जो this is referred for the finger, जो ये अंगूठी है, शादी की अंगूठी है, उसको रेफर किया गया है. Terrified, frightened, डरा हुआ. Ordeal. Ordeals means troubles, परेशानियां जो आंट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ में फेस कर रही हैं. That is called ordeals of a life. Let's check the summary. The aunt is embroidering a motif comprising of energetic, fearless tigers moving freely around the bright greenery. Aunt Jennifer अपने एक एम्ब्रॉयडरी का जो पैनल होता है वो उसमें fearless tigers को एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उनको बना रही हैं. She is living a life of submissiveness to her husband's command. क्यों? Because she is living, वो एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जहाँ पर उनकी लाइफ डोमिनेट करती है बाय द हस्बैंड. आपको मालूम है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में यूजुअली घर में जो वुमेन होती हैं, दे आर सफर्ड फ्रॉम द मेल डोमिनिज्म. दे डू नॉट कमांड, दे लिसन टू द कमांड्स. हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम एंड शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली. वो उनसे डरती हैं, बार बार एक डर उनके अंदर है और उस डर को वो निकाल नहीं पा रही हैं. सो दैट फियर इज कमिंग आउट थ्रू द टाइगर्स विच इज एम्ब्रॉयडरिंग in the panel. This pattern of the free and fearless tigers reflects her inner desire to live a free and fearless life. वो एक फ्रीडम वाला जीवन, एक मुक्त जीवन, एक बिल्कुल ओपननेस चाहती हैं लाइफ में, जिसमें कोई भी बर्डन ना हो, कोई भी कॉन्स्टेंट ना हो, कोई भी अपनी मर्जी से एक अपनी आज़ादी चाहती हैं लाइफ में,
जो उनके पास नहीं है। तो वो टाइगर्स को देखती हैं, टाइगर्स आर फियरलेस। जो हंटर्स के सामने भी टाइगर्स शांति से घूमते हैं, दे आर नॉट फियरफुल, दे आर ऑलवेज बोल्ड एंड दे रिजेंबल द स्ट्रेंथ। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड ब्राइट, और अपनी मस्ती में, अपनी आजादी में वो घूम रहे हैं। दे आर प्रांसिंग, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। सो टाइगर्स के बारे में जब आंट जेनिफर अपनी पोएम में बता रही हैं, शी इज कंपेयरिंग हर लाइफ विद देम, दैट शी इज हाउ ऑपोजिट इट इज। Aunt Jennifer's fingers tremble as she embroiders. She is old but still fears her husband. उनके हाथ कांप रहे हैं। वो आइवरी निडल में जब वो एक पुल कर रही हैं, शी इज पुलिंग द थ्रेड, तो उनको उनके जो हैंड्स हैं दे आर ट्रेम्बलिंग, फ्लटरिंग। शी इज ओल्ड बट दिस इज फियर। डर के मारे उनके हाथ कांप रहे हैं। वो सारा जीवन एक डर के सहारे जी रही हैं। एंड जो उनके हाथ में शादी की अंगूठी है, शी इट इज symbolizing the heaviness of married life. She doesn't enjoy the freedom to do anything as per her wish. Aunt Jennifer अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। She has no freedom. जो वो चाहती हैं नहीं कर पाती हैं। वो अपने आप को एक बंधा हुआ, एक बंधन में महसूस करती हैं। Since the day she got married, she has been fulfilling the demands of her husband. This is the pity. ये एक उनके जीवन का एक तकलीफ है दैट जब से उनकी मैरिज हुई है वो अपने हस्बैंड के डिमांड्स को पूरी कर रही हैं। शी इज मास्टर्ड बाय हिज विल। द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज ए कांस्टेंट रिमाइंडर दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। जो उनके हाथ में शादी की रिंग है वो उनको बार बार याद दिलाती है कि शी इज मैरिड एंड दिस इज हर ड्यूटी टू डू ऑल सर्विसेज एंड टू लिसन टू द कमांड्स ऑफ हर हस्बैंड। तो वो उसको छोड़ भी नहीं पा रही हैं। द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज एग्जॉस्टेड हर। और वो थक गई हैं, बहुत परेशान हैं, और वो ये इस मैरिज से, इस डिमांड से, इस लाइफ से शी इज नॉट हैप्पी। इट हैज बिकम ए बर्डन इन हर लाइफ। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ। उनको ये पता है कि ये जो डर है, ये जो पीड़ा है, ये जो ऑर्डियल है, ये जो परेशानी है, ये सिर्फ उनकी मौत के बाद ही दूर होगा। वो यहाँ तक कहती हैं, इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री। उनको फ्रीडम कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि शादी की अंगूठी उनके हाथ में तब भी बंधी रहेगी। शी विल नेवर बी फ्री। वो कभी भी अपने आप को एक आजाद मुक्त महसूस नहीं कर पाएंगी। ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स दैट शी इज एम्ब्रॉयडरिंग विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉरएवर। और उनको ये पता है कि वो जो टाइगर वो अपने जिनको वो बना रही हैं, जिनको वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो टाइगर उनकी मौत के बाद भी दे विल कंटिन्यू प्रांसिंग, इधर से उधर दूर दौड़ते रहेंगे, अपनी आज़ादी को इंजॉय करते रहेंगे। हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस विल लिव ऑन थ्रू हर टाइगर्स। तो उनकी अपनी इच्छा, जो उनकी अपनी जो एक अंदर से डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इंजॉय द फ्रीडम, वो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रांसिंग टाइगर्स। और टाइगर्स जब दौड़ रहे हैं और उनको देखते हुए उन अपनी डिजायर को पूरा कर रही हैं, बिकॉज शी इज fearful, she is timid, she is not so bold as her tigers are. Let us check poetic device. Alliteration, जब बार बार कोई वर्ड रिपीट होता है तो Chivalric certainty, the tree, fingers fluttering. Here you can see alliteration. Irony, हमने पहले भी पढ़ा था. Proud and unafraid, the massive weight of uncle's wedding ring. Here it is irony. जो शादी की रिंग कितनी हल्की होती है, it is not so burdensome, इतना मैसिव वेट नहीं होता है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंपेयर किया गया है. Here is the irony. And proud and unafraid, प्राउड भी हैं और unafraid. कौन? Tigers. So it is the irony that she doesn't feel any kind of symbolism. इस पोएम में symbolism यूज किया गया है. Tigers, they symbolize the Aunt Jennifer ringed ordeals. These are the words which are symbolizing the tiger symbolizes the strength. Aunt Jennifer, married women, and ringed is a burden
and ordeals, the painful life, the pains she is undergoing in her marriage life. अपने शादी की जिंदगी में जिस तरह की परेशानियां वो महसूस कर रही हैं, it is symbolizing in the poem. Personification: the tigers prancing, they pace in sleek chivalric certainty. टाइगर्स उनके जो वो पैनल में तैयार कर रही हैं, उनको बना रही हैं, वो प्रैंस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन्हें अपनी मस्ती में, अपनी terrified hands, it is transferred epithet. उनके जो हाथ है वो terrified है, यानी डरे हुए हैं, तो it is transferred. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is the finding the needle so hard to pull? कि उनके हाथ जो है कांप क्यों रहे हैं और सुई को खींचना उनके लिए Aunt Jennifer के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? आंसर: Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool while she is embroidering tigers on the panel. Her needle work is a medium for expressing herself, but she is finding it difficult to make those tigers and expressing those feelings due to oppression and weight of marriage, gender role, and a dominating society. Because Aunt Jennifer के हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को ओवरवेट महसूस कर रही हैं, बर्डन महसूस कर रही हैं बिकॉज ऑफ मैरिज रिंग, और जो इस सोसाइटी में जेंडर रोल है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और जिस वजह से वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं करती हैं. सो दैट्स वाई आंट जेनिफर्स के हाथ जो हैं वो कांप रहे हैं जब वो अपने पैनल में टाइगर्स को बना रही हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैसिव वेट है, जो अंकल की जो शादी का जो बैंड है उसका वेट जो है मैसिव, क्या सजेस्ट कर रहा है, हैवीनेस को क्या सजेस्ट कर रहा है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड रेफर्स टू द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन विच आंट जेनिफर लिव्स. द वेट ऑफ दिस मैरिज बैंड रेस्ट्रिक्ट्स हर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स एंड टू लिव फ्रीली. तो जो आंट जेनिफर के हाथ में अंगूठी है, जो शादी की रिंग है, बैंड है, तो वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को रेफर कर रहा है, और इस वजह से वो फ्री नहीं फील कर पा रही हैं और अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं और अपने आप को एक बंधन में महसूस करती हैं. दिस इज द रेफरेंस ऑफ मैसिव वेटिंग बैंड. थर्ड, इंटरप्रेट द सिंबल्स. थर्ड क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम. इस पोएम में सिंबल्स जो भी यूज किए गए हैं उनको बताना है. तो टाइगर एंड रिंग आर टू सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम. इस पोएम में एक टाइगर है और एक रिंग, जो मैसिव बैंड है जिसका वेट है, वो एज ए सिंबल यूज किए गए हैं. द टाइगर इज अ सिंबल ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस एंड मैस्कुलिन वर्ल्ड. जो टाइगर है वो एक पावर को, एक शक्ति को, एक आत्मविश्वास और एक मैस्कुलिन वर्ल्ड को शो कर रहा है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करता है. एंड रिंग, though represented as wedding ring, refers to the band or chain that binds a person to enslave him. और जो बैंड है वो एक गुलामी का प्रतीक है, गुलामी को सिंबल करता है. The tiger represents the longing of Aunt Jennifer's, whereas ring is referred to her present position of oppressed and subjugated by the male-dominated world. टाइगर एक फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है. आंट जेनिफर एक फ्री वर्ल्ड में रहना चाहती हैं, एक पावरफुल तरीके से जीना चाहती हैं, बट बिकॉज ऑफ द वेडिंग बैंड, बिकॉज ऑफ द रिंग, वो खुद को फ्री महसूस नहीं करती हैं और खुद को डोमिनेटेड फील करती हैं. नाउ चेक सम MCQs. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शिवालिक? शिवालिक का मीनिंग ferocious, fearless, कमांडिंग एंड डोमिनेटिंग, हाई रिस्पेक्ट. तो आप इसको देखिए कि वर्ल्ड शिवालिक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर? अंकल के कैरेक्टर से क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है? मेल स्ट्रेंथ, मैन इज पावरफुल, मैन इज लाइक टाइगर्स, और मेल शवनिज्म. तो आप
थोड़ा सा सोचिए, इस समरी को देखिए एंड यू कैन चेक द आंसर. आंसर्स आर गिवन एट द एंड, तो पहले आप खुद देखिए और फिर उनको चेक करिए. व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल्स सो हार्ड टू पुल? बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स, बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, बिकॉज ऑफ हर फियर्स, बिकॉज ऑफ द हेवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग. बहुत ईजी है, आप इसको देख सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं. What is the purpose of creating animals which are completely a contrast to aunt's character? आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो टाइगर है उनके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसका पर्पस क्या है? To show her strength and ability of not giving up in the face of difficulties, her courage, her fears and strengths, none. जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उसको आप चेक कीजिए. Now, what is the poet conveying to Aunt Jennifer's tiger? Poet क्या कन्वे करना चाहते हैं Aunt Jennifer's के टाइगर के थ्रू? A wild life, courageous tigers, tigers and their courage, and female existence and the fear of men. बहुत आसान है, आप इसको चेक कर सकते हैं. What is Aunt Jennifer's loaded with? Aunt Jennifer किस चीज़ से लोडेड है? अपने आप को हैवी महसूस कर रही हैं, तो वो कौन सी चीज़ है? वेट ऑफ रिंग्स, वेट ऑफ टाइगर्स, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ. आप देखिए इसमें आपको कौन सा सही लगता है. व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट? जो वेडिंग रिंग है, शादी की जो रिंग है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है यहाँ? ब्यूटी, एक्सपेंसेस, अननेसेसरी प्रेशर ऑफ अ डोमिनेंट हस्बैंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, नन. चेक कीजिए. Why did aunt embroider tigers on the panel? जो aunt हैं वो tigers को क्यों पैनल में उतार रही हैं, क्यों उनको बना रही हैं, उनकी एम्ब्रॉयडरी क्यों कर रही हैं? To express her suppressed feelings, to express her strength, to express her fighting spirit of a warrior, all of these. चेक कीजिए, आपको जो सही लगता है उस पर टिक कीजिए and then at the end you can check the answer. What do the tigers on the screen? Tigers क्या कर रहे हैं स्क्रीन में? They sing, jump, catch the prey, and prance. The attitude of the poet towards Aunt Jennifer is that of hatred, love, sympathy, and casual. तो क्या एटीट्यूड है पोएट का Aunt Jennifer's के लिए? तो आप इसमें से बताएं, चूज करें आंसर, चेक योर नॉलेज एंड एट द एंड आंसर की इज गिवन. आप उसमें अपने आंसर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं. अगर आप इस पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे. सो रेडी फॉर द एग्जाम. ओके, थैंक यू, बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू लाइक and comment in the box